Let us learn about pressure volume work. Glass is expanded isothermally from V1 to V2. V1 is volume 1, V2 is volume 2. Then work done is equal to minus P delta V. Delta V means change in volume. So V2 minus V1. So this is the formula of work. After that, an ideal gas is expanded isothermally and reversibly from V1 to V2. Then work done is equal to minus 2.303 nRT log of V2 by V1. And we know process is isothermal, so we can write P1 V1 equal to P2 V2. So these are the two different formulas of work done, which you have to choose according to the given condition. What is the given condition? Isothermally, in first case, gas is expanded isothermally and reversibly. Note that the word isothermally and reversibly and only isothermally. These are the two variations which can be asked in your exams. Now, sign convention for work done and heat. Heat will be positive when heat is absorbed by the system from the surrounding. Means system जब absorb करेगी heat from the surrounding, when it will be minus Q, heat is released from the system to the surrounding, then it will be negative. And when the work done will be positive, work is done on the system by surrounding, and work is minus W when work is done by the system on the surrounding. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाली है सिस्टम की, और यहाँ पे दिखाया है कि प्लस W कब आएगा, माइनस W कब आएगा, प्लस Q कब आएगा, माइनस Q कब आएगा. प्लस W कब आएगा? जब वर्क डन क्या होगा, सिस्टम पर होगा, किसी और से, मतलब कौन, सराउंडिंग. एंड माइनस W मीन्स सिस्टम जो है वो खुद वर्क करेगी, किस पर करेगी, तो सराउंडिंग पर. और प्लस Q क्या है, तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है. कौन कर रही है? सिस्टम कर रही है. किससे कर रही है? सराउंडिंग से. अभी हीट रिलीज हो गई है, मतलब हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम ना, तो सिस्टम रिलीज कर रही है हीट. किसको कर रही है? सराउंडिंग को. आई ड्रॉन दिस ऑल द डायग्राम टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर. एग्जाम्पल्स फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन. अब क्या करेंगे? एग्जाम्पल के टाइप्स है यहाँ पे. फर्स्ट है एग्जाम्पल टाइप 1 एंड एग्जाम्पल टाइप 2. तो इसमें 100 ml of ethylene, 100 ml of HCl are allowed to react at 2 atm pressure according to the reaction. रिएक्शन गिवन है हम लोगों को, और हम लोगों को प्रेशर वॉल्यूम पूछा है. तो हम लोग क्या करेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी डेल्टा वी मीन्स V2 माइनस V1. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन, मोल्स ऑफ C2H4 क्या है? 1 है. 1 मोल ऑफ C2H4 रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ HCl के साथ, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? 1 मोल ऑफ C2H5Cl. So V1 is equal to 100 plus 100, that is equal to 200 ml, and 200 ml is 200 into 10 raised to minus 3, that is 0.2 liter. After that V2 is equal to 100 ml, that is equal to 100 into 10 raised to minus 3, that will convert ml into liter. Then it will become 0.1 liter, and pressure is given 2 atm. So we can apply this formula minus 2 atm means pressure into V2 minus V1. After putting the values, answer has come 0.2 liter atm. तो लीटर एटीएम को हम लोगों को जूल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कन्वर्टिंग फॉर्मूला है 101.3 जूल पर लीटर एटीएम. तो इससे क्या होगा? हमारी जो भी क्वांटिटी आई है वर्क डन की, वो जूल में कन्वर्ट होगी, 20.26 जूल्स.
एग्जाम्पल टाइप 2, यहाँ पे क्या है 280 मिली मोल्स है ना, तो मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑफ अ परफेक्ट गैस occupies 12.7 liter at 3110 Kelvin. Calculate work done when gas expands isothermally. अभी फर्स्ट केस में दिया है कि आइसोथर्मली जो है गैस एक्सपांड कर रहा है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर भी दिया है 0.25 atm, और उसके बाद दिया है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। इन फर्स्ट केस आइसोथर्मली है तो हमने क्या वर्क डन का फॉर्मूला यूज किया है -P डेल्टा V। डेल्टा V इज डायरेक्टली गिवन टू अस, V2 minus V1 is 3.3 liter. Then work done is equal to -0.25 atm into 3.3 liter. After that we get answer in liter atm. Then we have to convert that liter atm into joules. So we multiply 101.3. इससे क्या होगा, हमारी जो क्वांटिटी है ना वर्क डन की वो जूल में कन्वर्ट होगी। आफ्टर दैट वी हैव टू डू आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, -2.303 log of V2 minus V1। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मूला, V1 क्या है 12.7 है, क्योंकि ये फर्स्ट में दिया था 12.7 है गैस। और आफ्टर दैट क्या होता है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली होता है वर्क डन उस पे, और until its volume has increased by 3.3। इस बाय का मतलब होता है जो पहले वाला है ना V1 उसमें आपको 3.3 ऐड करना होता है, ना कि वो 3.3 एज इट इज लेना है। तो इससे क्या होगा, V2 होगा 16। आफ्टर दैट 280 मिली मोल्स को हम लोग मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इट बिकम्स 0.28। आर की वैल्यू हम लोगों को पता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स उसका यूनिट है। वर्क डन का फॉर्मूला है -2.303 इंटू एन क्या है 0.28, आर की वैल्यू क्या है 8.314, टी टेम्परेचर की वैल्यू दी है उन्होंने 3110 इंटू लॉग ऑफ V2 बाय V1। V2 हम लोगों ने 16 कैलकुलेट किया था एंड डिवाइडेड बाय V1 क्या है 12.7। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और जो भी आंसर आएगा फाइनल वो जूल्स में आएगा। यहाँ पे हम लोगों को किसी भी यूनिट कन्वर्जन को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जूल्स में ही आएगा आंसर। आफ्टर दैट इनटू वैक्यूम। अब वैक्यूम में क्या होता है, व्हेन गैस एक्सपांड्स इन वैक्यूम प्रेशर इज 0। सो वर्क डन तो क्या होगा 0 होगा ना, क्योंकि प्रेशर ही 0 है, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो वर्क डन क्या होगा 0 जूल्स। आफ्टर दैट इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हर एक सब्सटेंस को, एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विथ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर सब्सटेंस एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सब्सटेंस। मीन्स सब्सटेंस क्या है, सिस्टम ही है ना जो एनर्जी को स्टोर कर रही है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सब्सटेंस मतलब सिस्टम इज कॉल्ड एन इंटरनल एनर्जी। उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, यू से, कैपिटल यू से। द इंटरनल एनर्जी is sum of kinetic energies of all molecules, ions, atoms of the system and potential energies associated with the forces between the particles। जो हमारे सिस्टम में मीन्स हमारे बॉडी में या कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जीज, और सब मॉलिक्यूल, आयन, एटम जो भी है सिस्टम में इन्वॉल्व उनके सब काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज, उसकी सब मिलके क्या बोलते हैं, उनको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम चेंजेस एज एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन एंड आउट ऑफ अ सिस्टम एज अ हीट और वर्क। तो इंटरनल एनर्जी चेंज कब होगी,
जब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एनर्जी को इन और आउट ऑफ द सिस्टम। और कैसे ट्रांसफर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ हीट और इन टर्म्स ऑफ वर्क। First law of thermodynamics. First law of thermodynamics is simply law of conservation of energy. So according to this law, total energy of a system and its surrounding remains constant when system changes from its initial state to final state. जैसे हमने स्टेट फंक्शन में बताया था, इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है। तो जब ये जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की भी और उसके सराउंडिंग की भी, वो चेंज होती है फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। तो वो क्या होगी, जब भी चेंज होगी इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, फिर भी उसकी जो एनर्जी होगी सिस्टम की एंड सराउंडिंग की वो कांस्टेंट होगी। और स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट इज टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अभी आइसोलेटेड सिस्टम क्या है हमने देखी, जो आइसोलेटेड होती है सराउंडिंग से, जो Q मीन्स हीट क्या है, सराउंडिंग के साथ शेयर नहीं करती है, हीट कांस्टेंट है। तो इसलिए टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कांस्टेंट है। उसके बाद एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट इट कैन नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। कौन सी भी एनर्जी होगी ना, तो वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ना कि उसको क्रिएट किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसके बाद द टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स की जो भी टोटल क्वांटिटी है एनर्जी की वो कांस्टेंट ही होती है। और उसके बाद है व्हेनेवर अ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी of one kind disappears then exactly equivalent amount of energy of other kind must appear। मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई है, डिसअपियर हुई है। तो हम लोगों को एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट हम लोगों को इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब उतनी ही एनर्जी जो डिसअपियर हुई ना, तो वो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोगों को वापस दिखनी भी चाहिए। Means other kind of energy must appear. After that, mathematical equation of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics का mathematical equation क्या है, du is equal to dq plus dw. du is change in internal energy, dq is change in heat, dw is change in work done. एंड मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट एंड दे आर म्यूचुअली इंटरकन्वर्टिबल। जो हमने आइंस्टाइन का इक्वेशन देखा है ना हर बार, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, उसका यही सिंपल मीनिंग है कि मास एंड एनर्जी जो है वो दोनों भी म्यूचुअली इंटरकन्वर्टिबल है एंड इक्विवेलेंट भी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने देखा इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, तो इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, du इज इक्वल टू dq प्लस dw, यहाँ पे du के जगह पे हमको जीरो पुट करना है, तो क्या आएगा, q प्लस w इज इक्वल टू जीरो और q इज इक्वल टू माइनस w और w इज इक्वल टू माइनस q। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस में हमको पता है ना dq इज इक्वल टू जीरो होता है, तो ये dq की वैल्यू जो है जीरो वो हम लोग पुट करेंगे, तो क्या आएगा, du इज इक्वल टू dw आएगा। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस में dv जीरो होता है, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम जीरो। तो चेंज इन वॉल्यूम किसके फॉर्मूला में होता है, वर्क डन के। तो वर्क डन के फॉर्मूला में जो भी dv है ना, वहां पे अगर हम लोगों ने जीरो पुट कर दिया तो वर्क डन जीरो होगा। तो क्या रहेगा, मैथमेटिकल इक्वेशन में du इज इक्वल टू dq रहेगा, क्योंकि dw जो है वो जीरो है। आफ्टर दैट आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मींस चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। फिर इस फॉर्मूला में du इज इक्वल टू dq प्लस dw में यहाँ पे चेंज इन प्रेशर है ही नहीं, जो भी dw में है वो एक्सटर्नल प्रेशर है, वहां पे चेंज इन प्रेशर तो नहीं बोला है हम लोगों को। तो क्या होगा, इसमें कोई भी क्वांटिटी जीरो नहीं होगी,
सब ऐसे ही होंगे, कोई तो du इज इक्वल टू dq प्लस dw मीन्स कोई भी जीरो नहीं है, सब लोग नॉन जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।